नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज संडील है और आप देखना शुरू कर दिए मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ रियलिटी बेस्ड मीडिया के बारे में। आज की मीडिया रियल न्यूज़ को दिखाती है, आज की मीडिया रियल न्यूज़ पे डिबेट करती है। आज मैं आज एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। टॉपिक नाम है ग्राउंड लेवल। दोस्तों आज की मीडिया रियल न्यूज़ पे डिबेट नहीं करती है। आज की मीडिया रियल न्यूज़ को नहीं दिखाती है। आज की मीडिया सिलेक्टिव क्वेश्चन दिखाती है, सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन पे ही डिबेट किया जाता है। मैं आपको एक क्लिप्स दिखाता हूँ टाइम्स नाउ का। On with us, we'll just come back to you, Arunil. Ashok Pandit is also joining us, a filmmaker. Mr. Pandit, well, a spot of good news. We are hoping to get an official word that Amitabh Bachchan is now fully recovered. Well, it's really a great news, all of us, not only to the industry but the entire country at large. All his fans, all those who praying for him, his fast recovery, and Bachchan Saab is a king, and we were all sure that he will get well very soon. It's really a great news for all of us, and I'm sure now the family also will test negative, and they all will be cured, and get well very soon. We all are hoping that Abhishek, Aishwarya, and his daughter will come out of this pandemic, and I'm sure they will also come back home with being totally cured. Mm-hmm. And Ashok Pandit, also the spirit of Amitabh Bachchan, the way that it didn't seem that he allowed COVID to get the upper hand. Even while he was hospitalized, he was tweeting and connecting with his fans. Very interestingly, he also borrowed a line from his father's poem for one of his posts, where he wrote, "For them that work tirelessly, relentlessly, unselfishly to keep us protected." Goes to show he also appreciated the amount of effort which were put in by the staff there at Nanavati Hospital as well, taking the time out and away from work to appreciate the efforts of the others. See, Bachchan Saab has always been very positive, and he's been a great inspiration to our industry, not only to our industry but to entire country at large. He has been a fighter. He has been encouraging people to do good things. He has been promoting, medicines. He has been promoting. He's been a biggest. Polio injection, promoter for that, and polio drops, and the way he come out for social causes. So he has a lot of blessings on him. Right. Absolutely. We all hope a speedy recovery, not just to Mr. Amitabh Bachchan, but also the rest of his family. Thank you so much, Ashok Pandit, for joining. तो दोस्तों आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन जी ने स्वयं यह ट्वीट किया। क्या लिखा है ट्वीट में, देखिए। This news is incorrect, irresponsible, fake and incontrovertibly. यह न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है। अमिताभ बच्चन जी भी फिलहाल कोरोना निगेटिव हैं और इस तरह का कोई भी लक्षण उनमें नहीं है। ये फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। समझ सकते हैं कि किस तरह का न्यूज़ को बवंडर, फेक न्यूज़ को बवंडर है। यहाँ पे बवंडर एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, फोटो तीसरे को फॉरवर्ड करते। तो इस तरह की न्यूज़ से बिल्कुल बचें और सावधान रहें। बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जिसपे तुरंत आर्गूमेंट मत कीजिए, तुरंत जजमेंट मत दिया कीजिए। पहले उसको रिसर्च कर लीजिए कि वो न्यूज़ फेक है कि नहीं है। तुरंत आर्गूमेंट करना, हो सकता है कि वो न्यूज़ फेक हो और बाद में आपको अफसोस हो कि ये न्यूज़ गलत था और इसको हमको फॉरवर्ड या उसके बारे में डिबेट नहीं करना चाहिए था, जो कि आप कर चुके हैं। तो इसलिए आप पहले कोई भी न्यूज़ पे, कोई भी डिबेट में पहले उस न्यूज़ के बारे में आप रिसर्च करिए, क्योंकि फेक न्यूज़ से बचें। उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं, तो इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, कार्यक्रम के भरने का फॉर्मूला। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। 5 रफाल पाकिस्तान हल्का। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं।
5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। एंकर की आवाज़ के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे, आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है, स्क्रीन चमक रहा है। अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। अगला 5 मिनट भरने के लिए स्क्रीन पर म्यूजिक से माहौल बना हुआ है। आप सहरसा में बैठकर भकुआए देख रहे हैं, बाप रे बाप रफाल आ गया है। आपके जिले के आधे लोग बाढ़ में डूबे हैं। जैसे ही ख्याल आता है कि गांव फोन कर बाढ़ का पता करें, तभी एंकर कई सारे प्रश्न स्क्रीन पर डाल देता है। तो सवाल आएगा, स्क्रीन पर पहले आएगा नंबर 1। एंकर थोड़ा रुक कर पढ़ेगा ताकि म्यूजिक बज जाए और थोड़ा टाइम कट जाए। हाँ, तो पहला सवाल आता है, क्या रफाल के आने के बाद आंख मिला पाएगा पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। अब ये सवाल कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर लटका हुआ है। म्यूजिक बज रहा है, एंकर चेहरे का भाव बदलता है, तभी नंबर 2 स्क्रीन पर धमाके की तरह आता है। लगता है कि सवाल नंबर 2 आ गया है। क्या चीन के पास है रफाल का जवाब? रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, ये रंबीसी जो बता रहे अच्छे दिन एंकरों के आ गए, अच्छे दिन एक एंकरों के आ गए और म्यूजिक वगैरह दिया जाता है। इस तरह की बातें होती है न्यूज में। तो ये न्यूज क्या करता है, तो जो भी है व्यूअर्स को अपने अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह की न्यूज से जो सेंसिटिव फैला है, जो दुर्घटना फैला है, जो लगे कि आपको ये कुछ न्यूज ऐसा है जो लगे सेंसिटिव बातें बोलती है, जो होता है कि नहीं आज ये हो जाएगा, वो घटना हो गई, इस तरह से बढ़ा चढ़ा के फैलाया जाता है कि ओरिजिनल वास्तविक में वो ऐसा कुछ नहीं होता उस न्यूज चैनल में। तो इस तरह के न्यूज एंकरों से, इस तरह के न्यूज चैनलों से, इस तरह की बातों से कोई, तो इस तरह के न्यूज को अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस तरह के न्यूज को दिखाया जाता है, और ताकि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो उन लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है। उन लोगों को कोई भी न्यूज आज अभी की डेट में आपको बता रहे हैं, कोई भी न्यूज 100% सही नहीं देती है, सही नहीं छापती है। चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ये तीनों दोस्तों 100% करेक्ट न्यूज को नहीं दिखाती है। हाल ये है कि मैं आज तक का एक आर्टिकल में दिखाता हूँ, उसमें लिखा हुआ है, क्या देखिए, लिखा हुआ है सऊदी अरब के आदमी को अगर भूख लगने पे वो अपनी पत्नी को खा सकता है। ये वहाँ का नियम। इस तरह का कोई भी कानून वहाँ पे पास नहीं है। ये गलत आर्टिकल दिखाया गया। मैंने टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस को भी पढ़ा है, हिंदुस्तान टाइम्स को भी पढ़ा है, द हिंदू को भी पढ़ा है, उसके बाद से इंडिया टाइम्स टुडे, इंडिया टुडे को भी पढ़ा है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स है, अल जजीरा, उसके बाद से न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, उसके बाद से चाइना का ग्लोबल टाइम्स हो गया। ये सब न्यूज मैंने पढ़ा है, बट इस तरह की ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल भी अप्रूवल आर्टिकल नहीं है, बिल्कुल गलत आर्टिकल डाला हुआ है। तो इस तरह के आर्टिकल से आप बचें। और इस तरह के आर्टिकल आदमियों को क्या करता है, आदमियों को देखने वाले के मन में थोड़ा सा गलत भावनाएं उत्पन्न करती है, पैदा करती है। तो इस तरह के आर्टिकल से भी बचे। और क्या कुछ न्यूज़ फेक चलती है, देखते होंगे आर्टिकल, ये मतलब बहुत सारा फेक न्यूज़ चलती है, जैसे कि देखते होंगे बहुत सारा फेक न्यूज़ किसी भी आर्टिकल पे या कोई भी टीवी डिबेट पे अपना जजमेंट तुरंत नहीं दे। जब तक उस पर 100% वेरीफाई नहीं हो जाए तब तक आप अपना जजमेंट नहीं दें। तो पहले वेरीफाई हो जाइए, पहले सोच लीजिए कि हाँ ये सच में हो सकता है, क्योंकि आजकल का आर्टिकल, पहले उस आर्टिकल पे सेटिस्फाई हो जाइए, पहले खुद उस पर एक रिसर्च कर लीजिए कि ये सच में सही हो सकता है, ये सही न्यूज है, तब उस पर जाके कोई डिबेट कीजिए। आजकल ना फेक न्यूज का भंडारा चल रहा है, बवंडर हो रहा है फेक न्यूज का, एक दूसरे को फॉरवर्ड करा, दूसरा तीसरे को शेयर करा, तो ये ना सिलसिला चालू है। तो इस तरह की न्यूज़ से हमेशा बचें और इस तरह की न्यूज़ को फैलाने से भी रोकें। इस तरह की न्यूज़ को फैलाने से बचे और दूसरे को फैलाने से भी रोके। इससे दूसरे की सद्भावना को भी ठेस पहुंचते। कुछ ऐसा न्यूज़ होता है जिससे दूसरे को पसंद नहीं, यार आप उस तरह की न्यूज़ उसको बार बार पूछेंगे तो पहले ही उसके बारे में जजमेंट कर देना कि वो गलत है, बिना कोई रिसर्च किए हुए, बिना कोई उससे पूछे हुए, बिना उससे कुछ समझे हुए उस पर अपना टिप्पणी कर देना, बता देना, अपना जजमेंट कर देना, ये बिल्कुल भी गलत है। इस तरह का और क्या, और तीसरा बताते हैं क्या होता है। एक
बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल का, जिसे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ये एक ये भी आपको हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा था, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा था, ये गलत फेक आर्टिकल था, बिना रिसर्च किए हुए आर्टिकल छापा हुआ था। ये बिल्कुल भी इसमें दम नहीं था। अब जो भी पढ़ा होगा उसको क्या लगा होगा कि ये सही है, बट ऐसा नहीं था दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब तक आर्टिकल पे आप पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर ले, ठीक है, तब तक उस पर कोई भी जजमेंट या कोई भी आर्गूमेंट मत दीजिए। कोई कर रहा है तो वो डिबेट पे आप शामिल नहीं हो जब तक आप पूरी तरह से 100% सेटिस्फाई नहीं हो उस बात पे। देखिए, कोरोना वायरस पे भी बहुत तरह की कोरोना वायरस के पे भी बहुत तरह की भी टिप्पणी चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप वो बता रहे कि एक लैब में ये टेस्टिंग करने से कोरोना वायरस फैला हुआ है। और कुछ द हिंदुस्तान आर्टिकल वगैरह से हम पढ़ रहे हैं तो उसमें दिखा रहा है एक जीव से उत्पन्न हुई है। लेकिन इस पर पूरी तरह से अभी तक कोई WHO हो या जितना भी साइंटिस्ट हो या रिसर्चर हो, अभी तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से बता नहीं पाए कि वायरस आखिर आया कहाँ से है। जब कोरोना वायरस, कोविड-19 के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। कोविड-19 जो फेक न्यूज आई है, जो ओरिजिनल नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे को पता है कि चाइना हर एक न्यूज को शेयर नहीं करना चाहते। हो सकता है कि वो लैब टेस्टिंग के दौरान ही हुआ हो, बट जब तक फैक्ट नहीं है तब तक उस पर बात करना, तब तक उस पर कोई जजमेंट करना ये गलत है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जजमेंट करना बिल्कुल गलत है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की न्यूज़ से मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए आर्टिकल, सेटिस्फाई और फिर उस पर जाके अपना आर्गूमेंट दे, अपना जजमेंट दे। इसी के साथ दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैं ट्विटर पे आ गया हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सूरज सांडिल 99, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सूरज सांडिल 99। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।